ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਿਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੂਰਜ किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, ईज दे मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदाह गुरु गोबिंद सिंह। शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। वाह वाह गोबिंद सिंह। आपे गुर चेला गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। नानक निरभउ निरंकार विच सिद्धा खेला। पीवो बाहुल खंड तार हुए जन्म सुहेला। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला। वाह वाह गोबिंद सिंह। आपे गुरु चेला तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरना साका। तू ठाकुर उच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा जंगल जंगल क्या भवै वन कंडा मूड़ी। वसी रब ही हाली है जंगल क्या ढूंढे। फरीदा इनी निकी जंगी है थल डूंगर पवे होम। आज फरीदा कूजड़ा सह कोहा थियोम। फरीदा राती वड्डियां धुख धुख उठन पास। तिग तिना का जीविया जिना बिडानी आस।
ਫਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆੜਿਆਂ, ਹੇੜਾ ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉ ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੁੜਾ ਦਾਖ ਵਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਈ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਨਿਹੋ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨਿਹੋ। ਭਿਜੋ ਸਿਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੋ ਮਿਹੋ। ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨਿਹੋ। ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨਿਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ 19 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਦਸੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
तेग बहादुर साहब महाराज जी उत्थे पहुंचे सन, उस धरती नूं नवाजिया सी। सतगुरां दी बाणी दा फरमान है, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। संगत जी, जिथे गुरु पैर धरदा है वो थान सुहावना हो जाता है, वो जगह पूजन योग हो जाती है। तो गुरु के सिख समय समय उस स्थान ते जा करके सजदा करते हैं, उसकी चरण धूड़ मस्तक ते लाउंदे ने ते सतगुरां दियां उन्हां पवित्र यादां नूं जा करके उत्थे ताजा करदे हैं। सो इत्थे जदों जन्म दे बारे पता लग्या, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं आसाम दे विच खबर कीती गई कि आप जी के गृह विच एक पुत्र ने जन्म लिया। सतगुरां ने खुशी जाहिर करते हुए उथों ही बालक का नाम रख दिता गोबिंद राय। गोबिंद राय नाम रखिया, यही नाम प्रचलित रहा। संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज इन्हां दा नाम सी। गुरु पदवी नूं प्राप्त कीता सी 9 साल की आयु दे विच, जदों पिता नूं शहीद होने वास्ते तोरिया सी 1675 ईस्वी दे विच। उदों इन्हां नूं गुरु पदवी मिली है। ते संगत जी, उत्थे भी इन्हां दा नाम गोबिंद राय है। जदों जन्म लिया, जन्म लैण तो बाद नाम गोबिंद राय रखिया, पर गोबिंद सिंह इन्हां दा नाम उदों बनिया जदों 5 प्यारिਆਂ पासों खंडे बाटे की पौल इन्हां ने छकी है। फिर ये गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने। ध्यान देना गुरु की संगत, फिर सरवण करियो। जदों जन्म होया, पिता ने नाम रखिया गोबिंद राय। जदों गुरु साहब शहीद होने वास्ते दिल्ली गए ने, भाव की गुरता गुरगद्दी सौंपी गई है, उदों भी नाम गोबिंद राय है। 1699 दे विच जदों खंडे बाटे की पौल पहला 5 प्यारिਆਂ नूं दिती है, फिर उन्हां पासों गल दे विच पल्ला पा के सतगुरां ने आप वो पौल लई है। खंडे बाटे की पौल छकण तो बाद जिवें भाई दया राम दया सिंह बने ने, भाई धर्मचंद धर्म सिंह बने ने, हिम्मत राय हिम्मत सिंह बने ने, मोहकम चंद मोहकम सिंह बने ने, साहिब चंद साहिब सिंह बने ने, तिवें गोबिंद राय भी गोबिंद सिंह बने ने। संगत जी, फिर ख्याल वास्ते दस जाइए, जन्म समय नाम गोबिंद राय रखा गया, गुरगद्दी समय नाम गोबिंद राय है, अमृत छकण तो बाद इन्हां दा नाम गोबिंद सिंह प्रचलित होया। फिर खंडे बाटे की पौल छकी है तो गोबिंद सिंह नाम रखा गया। सो जदों नाम रखा गया गोबिंद राय, ते नाल एक चिट्ठी हदायत रूप दे विच लिखी कि हालात ने ना जेड़े वो योग नहीं है, अनुकूल नहीं है, समा अनुकूल नहीं। औरंगजेब अपनी कुछ हरकतां दे नाल गुरु घर नूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश कर रहा है। किसी समय भी वो अपना कोई गलत वार करके परिवार नूं बच्चे नुकसान पहुंचा सकता है, ते इस बच्चे नूं किसी दे सामने ना आउण दिता जाए। संकेत कर दिता गुरु साहब जी ने कि गोबिंद राय जी नूं कदे किसी दे सामने ना लियांदा जाए। हालात इहो जे नहीं, समा अनुकूल नहीं जे, इस करके बिल्कुल भी किसी दे सामने नहीं लियाउणा। हुण ध्यान दिओ,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ औरंगजेब का भेजा है कोई सिपा सलार ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਢੌਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਚਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਆਪ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ, ਕਿ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਰਿਆਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਢੌਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਖਮਲੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ
दो कुजियां लियांदियां सन, वो बालक दे अगे कीतियां ते गोबिंद राय जी ने उन्हां दोनों कुजियां दे उत्ते हथ रख दिता। जदों हथ रखिया वो पिछे हो करके ना उचे उचे खुशी मनाउण लग गया, नचण लग गया। हुण जदों ये खुशी दे इजहार कर रहा है, इस तरह का व्यवहार कर रहा है, सुभावक इसी भी उसनूं पुछया जाए भी ये क्यों कीता है। तद फिर उन्हें दसिया, कहते ये सांझे मुरीद ने, पीर फकीर ने, मैं किन्हां तो सवाल पुछया सी कि ये हिंदुआं दे होणगे जां मुसलमानां दे होणगे, ते इन्हां ने दोने कुजियां दे उत्ते हथ रख के कह दिता भी ये सांझे पीर फकीर रहबर होणगे, ये सबना दी सार लैणगे, ये सबना दे वल होणगे, सबना नूं ही इन्हां दा उपदेश मिलेगा, इन्हां दी सिक्ख्या मिलेगी। क्योंकि गुरु साहिब दे वचन ने उपदेश चौ वर्णा को सांझा, चौ वर्णा वास्ते सांझा उपदेश। सो खुश होके वापस मुड़ गया ते बालक थोड़े जे वड्डे होए ते बड़े तरह के कौतक पटना साहिब की धरती ते वरताए। एक नेत्रा तो होनी माता सी, उन्होंने नेत्रा की दात बख्शी। उथे एक पंडित बैठदा सी, शिवदत्त, जिहड़ा जमुना नदी के तट ते बड़ी देर दा बैठा, लगभग 50 साल हो गए सन उन्हों परमात्मा की बंदगी करदियां, नाम जपदियां, ते हर रोज कोई इच्छा होंदी सी कि अयोध्या वासी रामचंद्र जी मैनू आके दर्शन दिओ। एक दिन बालक बच्चियां नाल खेडदे पे सन, गोबिंद राय जी कोल चले गए पंडित दे, जाके आवाजा दिता, पंडित जी उठो, तुहाडी भगती होगी परवान, अज तुहानू असीं दर्शन देण वास्ते आए हां। जदों नेत्र खोले, अगे गोबिंद राय जी ने वेख्या, पहला तो आसे पासे वेखण लगे भी आवाज कित्थों आई। जदों आसे पासे वेखदे ने, धन गोबिंद राय जी कहण लगे भी आसे पासे ना वेखो, मेरे वाल वेखो, मैं ही तुहानूं आवाज दित्ती। कहंदे पर मैं तां राम रूप विच दर्शन करन दी इच्छा रखदा हां। तद संगत जी फिर उन्होंने राम रूप विच गोबिंद राय जी ने दर्शन दिते, उहदी मुराद पूरी की। फिर उहदे ही लगाए ते राणी मैणी, जिहदे घरे औलाद नहीं सी, संगत जदों पंडित की मुराद पूरी हुई, उन्हें राणी मैणी नूं प्रेरणा कर दी ते राणी मैणी गुरु साहब जी की जां गोबिंद राय जी की हर रोज प्रतीक्षा करदी, छोले घुगणियां आदि पदार्थ देंदी ते मन विच इच्छा प्रगट की कि मेरे घरे आप जी वर्गा पुत्र पैदा हो गए। तद फिर उस माता मैणी नूं गुरु जी ने अपने धर्म की माता बनाया। जन्म देने वाली माता माता गुजरी सी और धर्म की माता बनी सी माता मैणी। गुरुद्वारा मैणी संगत है, उत्थे घुंगड़ियां दा छोलियां दा प्रसाद हर रोज वरतदा बालकां नूं सद सद के बुला बुला के उन्हां नूं सिखाया जांदा है। इहदे पिछे की सी, जदों गोबिंद राय जी ने पटना साहिब की धरती नूं छड्डिया सी, तदों राणी मैणी आके बेनती कर लगी सी, कहंदे साडी मुराद हर रोज तुहाडे दर्शनां वाली किवें पूरी होएगी। तद फिर गुरु पातशाह ने बचन कहे सन, जाण लगिया
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਛਕਾਓਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛੋਲੇ ਆਦਿਕ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੀਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਤਦ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇ। ਸਭੇ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ, ਦਿਸਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਤ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਗੋਤਾਖੋਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਫੋਕਟ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਗੇ, ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਣੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ।
दो टोलियां बना लैनियां, एक उच्ची थां ते एक टोली नूं तैनात कर देना, दूजी टोली दे द्वारा पहली दे उत्ते हमला करवाउणा, झूठ मूठ दी लड़ाई करवाउणी, ते जिहड़ा जित जांदा सी उहनूं मान सन्मान भी मिलदा सी। कहण तो भाव कि जो उन्होंने जीवन काल दे विच कर्म करने ने वो पहले सिद्ध करके दिखा दिते सन भी इहो जिहे कर्म कर। ते निरभैता दी मूर्त सन, डरदे किसे तो नहीं। कहते उथों दा कोई राजा सी, बादशाह सी, वो लंघ रहा सी, उहदे ढंडोरचियां ने आउंदे ढंडोरा पिट दिता। ये कहा कि बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, सारे झुक के सलाम करो। सारे उहदी स्वागत वास्ते, तैयारी वास्ते अगे खड़ के सलाम करते पे। पर गोबिंद राय अपने साथियों के नाल उस बादशाह की कोई परवाह नहीं की, सगों उहदा मूँह चढ़ाया, उहनूं खिजाया, उहदे हुक्म नूं नहीं मन्निया, डर नूं नहीं मन्निया, सगों उहनूं खिजाया। ते संगत जी जदों खिजाउंदे रहे ने, इथों पता लगदा भी डर किसे दा नहीं हैगा मन विच। पै काहू को देत न पै मान त्यान, ना डरना किसे तो ना किसे नूं डराउणा। ये प्रक्रिया होनी अंदर दिल दे विच, ना किसे दा डर मनना, ना किसे नूं डराउणा। ये गुरु साहिब जी ने सानू गुरबाणी दे रहे उपदेश दिता, भै काहू को देत न पै मान त्यान। ते संसार के लोगों को उपदेश रूप विच गया गुरबाणी का उपदेश असीं सारिआं ने मनना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनदे आ। ते इस उपदेश नूं असीं मनना, डर किसे तो लेना नहीं, किसे दा डर कबूलना नहीं संगत जी, ते ना ही किसे नूं डराउणा है। सो इस करके डरदे नहीं सन। फिर जो खेडां खेडदे सन, जो त्रिमता पानी भर के लियाउंदियां सन, तीरां दे नाल गुलेलियां दे नाल उन्हां दे घड़े फुंडदे ने देंदे सन, तो माता जी को शिकायत करदियां सन। ते माता जी उन्हां नूं घड़ियां दे पैसे दे देंदे सन। दूजे दिन फिर वही घड़े टुटे हुंदे सन। फिर माता जी ने उन्हां नूं गागरां बना के दित्तियां, तो गागरां विच जल लिया के आउंदे रहे। ते संगत जी फिर तीरां दे नाल ओह गागरां भी फुंड दित्तियां गईयां। मतलब अपने जंगी प्रक्रिया नूं पहलां ही जाहिर कर दिता भी अपने जीवन काल दे विच इह करना है। फिर गोबिंद राय जी पिता आसाम तो पंजाब आए सन, बालक के दर्शन दारे करके मिल के पंजाब वाल चले गए। ते हदायत की भी जब तक असीं तुहानूं बुलाउंदे नहीं उन्नी देर तक आउणा नहीं। 5 साल की आयु दे विच आनंदपुर साहिब मदर देश पहली बारी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अपने पुत्र नूं बुलाया। ते संगत जी 5 साल की उम्र दे विच गोबिंद राय जी ने इस पंजाब की धरती ते अपना पहला कदम रखिया। आउंदे सारी फिर अपने कारज आरंभ कर दिते। उही जो खेडां उत्थे खेडदे सन उही इत्थे खेडण लग गए। हुण पिता जी की निगरानी विच युद्ध विद्या के अभ्यास करन लगे, शस्त्र विद्या के अभ्यास होए, तीर अंदाजी के अभ्यास होए, नाल विद्या पढ़ाई दे विच भी पिता जी ने बालक नूं निपुण करना चाहया। ते जिहड़ी विद्या वास्ते पिता जी लाउंदे सन बड़े ख्याल दे नाल और बड़े वधिया ढंग दे नाल सारी विद्या ग्रहण करते रहे। ते इन्हें नूं हुण 9 साल की उम्र हो गई आप जी की। ते पंडित किरपा दत्त की अगवाई विच या पंडित किरपा राम की अगवाई दे विच कश्मीर तो पंडित आए, जिन्हों ने आके फरियाद की गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में कि साडा धर्म संकट दे विच है, सानू बचाओ। औरंगजेब बादशाह सी, दिल्ली के तखत ते वो बैठा सी, ते वो चाहता सी कश्मीर तो लैके हिंदुस्तान के आखिर तक सारे पासे इस्लाम का बोलबाला।
इसलिए उन्हें जम्मू कश्मीर वाले पासे तो शुरुआत की, क्योंकि उत्थे बहुत मंदिर सन, बहुत पंडित सन, धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला से, इस करके उन्हें उत्थों आरंभता की। सवा मन जंजू ला ला के कहते वो रोटी खांदा या भोजन छकदा सी भी इन्हां नूं हर रोज मारदा सी। हुण कईयां ने ते धर्म तब्दील कर लिया, सलाम कबूल कर लिया, सुनत करवा ली। कई जिहड़े सन्मुख हो करके खड़दे सन उन्हां नूं मार दिता जांदा सी। जदों इस तरह धर्म संकट दे विच होया, उन्हां सारियां ने एक थां ते इकत्तरता करके कहंदे भी गुरु साहिब दी चरण छन विच जाइए, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ बचाउणगे। फिर जो 9 साल की अवस्था सी गोबिंद राय जी की, उदों आप जी दे पिता जी दे कोल जदों पंडित आए सन ते बालक जी ने पूछया सी सह सुभाए, कहंदे भी की चाहुंदे हन, इन्हां दी इच्छा की है? कहंदे इन्हां दी इच्छा है कि इन्हां दा धर्म संकट दे विच है, कोई महापुरख इन्हां दे धर्म नूं बचाउण वास्ते अपना बलिदान देवे। तद गोबिंद राय जी ने आख्या सी, कहते सतगुरु जी तुहाडे तो वड्डा महापुरख होर कौन है? जे इन्हां दा धर्म संकट विच आप ही बलिदान दे के इन्हां दे धर्म नूं बचाओ। कहते पुत्र मैनू तेरे तो यही उम्मीद सी, पर इन्हां दा धर्म बचाउण वास्ते तेरे सिर तो पिता दा साया हमेशा नहीं उठ जाना। कहते पिता जी कोई परवाह नहीं, जे बहुतियां दे सिरां दे उत्ते पिता दे साए रहिंदे ने ते सतगुरु आप दी कृपा मेहरमत सदका तुसीं देश कौम दे लई कुर्बान हो जाओ, देश कौम दे लई शहीद हो जाओ। इस तो वड्डी बलिदान वाली कुर्बानी वाली गल किहड़ी हो सकदी है? तेग बहादुर बोलिया धर पई है धर्म ना छोड़ी है, बाहे जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै बाहे ना छोड़ी है। फिर गुरु साहिब जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना सीस दिता। उन्होंने दे सामने ही जान तो प्यारे भाई मती दास, सती दास, दयाला जी, एक नूं आरे नाल चीरिया गया, एक नूं उबलदी देग विच उबालिया गया, एक नूं रूह दे विच लपेट करके शहीद किया गया। फिर संगत जी 1675 नवंबर के महीने दे विच गुरु साहिब का सीस भी धड़ तो जुदा कर दिता। जदों सीस नूं धड़ तो जुदा किया गया, भाई लखी शाह वणजारा ने सतगुरां दा धड़ संभालिया, भाई जैता जी उन्होंने सतगुरां दा सीस संभालिया। लखी शाह वणजारे ने रकाबगंज स्थान ते धड़ दा संस्कार किया ते संगत जी भाई जैता जी गुरु साहिब का सीस लैके अनंदपुर साहिब विच आए। नमवा साहिब की पवित्र पावन धरती ते सतगुरां दे सीस का संस्कार किया। भाई जैता जी नवाजिया रंगरेटे गुरु के बेटे का आदेश दिता ते गोबिंद राय ने कहा भी तुसी कल्ले ही आए हो, ये गुरु का सीस लैके आए हो, 9वें गुरु हन, सिख धर्म के गुरु हन, तुहाडे नाल होर संगतां क्यों नहीं आईयां? कहते पातशाह जी मुगल फौज का डर होने करके कोई भी नहीं आया। सतगुरु पातशाह कहते गोबिंद राय 9 साल की उम्र में कहते इन्हां दे मना दे विचों मैं हमेशा लई हरेक मुगल सल्तनत का डर कढ़ दियांगा ते ऐसा खालसा पंथ मैं सिरजना जिहड़ा लखां दे विच खड़ा कल्ला नजर आवेगा। ये पिता की शहादत तो बाद गुरु पातशाह ने बचन किए। फिर संगत जी उहदे वास्ते 1675 में शहादत हुई, बचन किए ते खालसा पंथ की सिरजना हुई 1699 दे विच। इन्ने समय विच गुरु साहिब जी ने तैयारी की है। तैयारी किवें दी कीती है कि खालसा पंथ इहो जिहा सिरजना जिहड़ा लखां दे विच खड़ा कल्ला नजर आवे, जिहड़ा कदी डरे ना किसे तो, जिहड़ा किसे दा कदी भै ना मन्ने, जिहदे अंदर सूरम गति होवे ते सिखर दी जे भगती होवे ते ओह भी सिखरता वाली, इहो जिहा पंथ सिरजण वास्ते संगत जी 24 साल का समा लग गया। पहला गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने यह नीति अपनाई सी
क्योंकि पिता गुरु अर्जन देव जी जदों शहीद होने वास्ते गए ने अपने पुत्र नूं पहला ही शस्त्र विद्या दे विच माहर कर गए सन। शहीद होने तो बाद मीरी पीरी दियां 2 तलवारां गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पहनी। उदों सिख संगतां नूं हदायत कीती, वधिया घोड़े, वधिया सुडोल शरीर, साडी भेटा लैके आओ, शस्त्र लैके आओ। फिर सिखां नूं शस्त्रधारी बनाया गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। शाहजहां दे नाल 4 जंगा लड़ियां, उन्हां सिंघां नूं सिखां नूं नाल लै लै के संगत जी बड़े सूरम गति दे नाल उह सिख जिहड़े गुरु दी किरपा सदका लड़दे रहे ने। फिर यही तैयारी गुरु गोबिंद राय जी ने कीती है। कहते अमृत छकाउण तो पहला 24 साल जो समय दे विच सिख संगतां नूं पूरा रूप विच तैयार कीता है। उन्हां नूं शस्त्रधारी होण दे हदायत कीती गई है। घोड़सवारी करो, शस्त्र विद्या दे अभ्यास करो, शिकार खेडो, छोटिया छोटिया टुकड़ियां बना बना के जंगा करो, तां जो आने वाले समय दे तुसीं पूर्ण रूप से सुचेत हो सको। ये प्रक्रिया करते करते 24 साल का समा लग्या। जो वेख्या पूरी तैयारी हो गई है, फिर गुरु साहब जी ने खंडे बाटे की पौल छका के पहला 5 प्यारियां की सिरजना की, फिर 5 प्यारियां पासों आप अमर की दात प्राप्त करके वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला धन गुरु दशमेश पिता गोबिंद राय जी, गोबिंद राय तो फिर अमृत की दात प्राप्त करके गुरु गोबिंद सिंह बने। गुरु गोबिंद सिंह आप सिंह बने, सारे पंथ नूं सिंह बनाया ते खंडे बाटे की पौल छकाई। संगत जी इत्थे केवल बस नहीं है, कहते भी 14 जंगा पहाड़ी राजियां दे नाल ते मुगलां नाल लड़ियां ने, किसी भी जंग दे विच हार नहीं होई कदे। इसे नूं तैयारी कही सी ना कि डरना किसे तो नहीं, डराउणा भी किसे नूं। 14 जंगां दे विच कदी हार नहीं होई ते सन्मुख हो करके गुरु के सिंह मर जीवड़े लड़ते रहे ने हमेशा। संगत जी भंगाणी दे जंग तो शुरुआत हुई, निर्मोह दा जंग आनंदपुर साहिब दे लगभग 5 तो 6 के करीब जंगा अमृत छकाउण तो पहले ही हो चुकी। बड़िया बड़िया जंगां दे विच गुरु साहब जी ने सिखां दी सूरम गति, सिंघां दी सूरम गति वेखी है। इस करके गया भी हुण परिपक्व हो गए। फिर खंडे बाटे की पौल उन्हां नूं छकाई। जदों खंडे बाटे की पौल छकाई, एक बाटे दे सारे नूं छका दिता, धर्म दे जिहड़े नियम सिद्धांत एक बना दिते, जात पात खत्म कर दिती, किसी तरह की कर्म कांडी रीति रिवाज सब मुका दिते। ते इस गल का सुभाव की सी कि जिहड़े लोगों के उत्ते जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले अहलकार सन, उन्होंने ये गल चंगी नहीं सी लगती। इस करके उन्होंने पूरा जोर लाया कि आनंदपुर साहब का किला छड़ दे। कई बार सरकारी दरबारे औरंगजेब के कोल जाके फरियादा की, कई बार सेनावां चढ़ के आईयां ते वो सारियां सेनावां हरेक वार हार के ही जांदियां सन। ते संगत जी फिर 1604 दे विच लगातार 8 महीने 10 लाख की फौज ने घेरा पा के रखिया ते अंदर किले दे विच बहुत दिक्कत आई। खाण पीण की समग्री मुक गई। जदों खाण पीण की समग्री मुक गई, अंदर बहुत किल्लत दुख के समय दे विच इधर जिहड़ियां बाहर सेनावां सन उन्होंने भी सौं खादियां, कसमां खादियां, पर गुरु साहब किसी की कसम ते एतबार नहीं करते रहे। इधर सिखां दे विच भी पाड़ पैण लगे। 100 सिंघां दा जत्था गुरु साहब नूं बिदावा लिख के जाण लग्या। जदों गुरु साहब तो आग्या लैके जाण लगे, सतगुरु ने कहा बेदावा लिख के दे जाओ, नाता तोड़ के जाओ। जदों बेदावा लिख के देण की गल की, 100 सिंघां दा जत्था सी वो 40 रह गए, जिहड़े 60 सन वो झड़ गए।
40 ने विदावा लिखिया, वो चले गए। फिर सतगुरां ने किला छड्डिया, चमकौर गढ़ी की जंग हुई, सरसा नदी ते परिवार का विछोड़ा होया, 3 हिस्सों में परिवार वंडिया। वो फिर चमकौर गढ़ी की जंग विच वड्डे साहिबजादे शहीद होए। फिर सतगुरु जी सारे मुकाम नूं पूरे करते करते सब थावां तो किते पंथ नूं निवाजते रहे, किते उचदा पीर बन के गए, किते काई दा बूटा पट के मुगल राज की जड़ पुट्टी, किते औरंगजेब नूं फतेह की चिट्ठी लिखी दीना कांगड़ दे, किते 40 नूं मुक्त कीता, किते गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता की, ते खालसा पंथ नूं हमेशा निवाजते रहे, चढ़दी कला बख्शिश करते रहे। ते संगत जी सारा समा जो बतीत हुंदा गया, इन्हां पड़ावां तो गुरु साहब लंघते गए। दिल्ली दे विच आखिरी बादशाह बहादुर शाह, पहला बाबर गुरु नानक ने नवाजिया, फिर बाबर नूं बहादुर शाह नूं आप तख्त ते बिठाया, 7वीं पीढ़ी। उस तो बाद फिर मुगल राज की जिहड़ी जड़ पुट्टण वाली गल सी कि उस तो बाद बाबर की कुल विचों कोई मुगल बादशाह नहीं बैठिया, रक्षीर बाद विच बैठिया, वो बाबर की कुल विचों नहीं सी। सो इस तरह गुरु साहब फिर चले गए। अखीर सतगुरु जी गए अबचल नगर नादेड़ की धरती ते, जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं अमृत छका के उन्होंने माधोदास बैरागी तो गुरु का सिंह, गुरु का बंदा साजिया गया। ते गुरु का बंदा साज के उन्होंने पंजाब वाल भेजिया गया, खालसा राज की नींह रखण वास्ते, खालसा राज नूं कायम करने वास्ते उन्होंने पंजाब वाल भेजिया गया। पर पंजाब वाल भेजण तो पहला संगत जी सतगुरु पातशाह महाराज जी ने आप जी दे सेवादारां वजों 2 पठान जिहड़े वजीर खान ने भेजे सन, वो अबचल नगर नादेड़ की धरती ते गए, गुल खां वर्गे ते समय की ताक विच सन कि कदी मौका मिले। पर गुरु पातशाह महाराज जी ने अपने जिहड़े कारज सन वो आरंभ दिते। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं भेज दिता गया पंजाब वाल कि वो जाके खालसा राज की नींह रखणगे। ये आदेश करके हुण पता लग्या भी सारे कारज संपूर्ण होए ने। फिर एक दिन रहरास दे पहाड़ तो बाद आराम अवस्था विच सन ते मुगलों गुल खां वर्गियां नूं पठाणां नूं मौका मिल गया ते गुरु साहब जी अध कच्ची नींदर दे विच सन ते उस गुल खां ने जहर लगे एक खंजर नूं सतगुरां दे उत्ते एक भरमा वार कीता। बहुत गहरा वो खंजर जदों लगिया सतगुरां दे, दूजा जदों मार लगिया संगत जी सतगुरां ने अपनी तलवार नूं संभालिया ते उस पठान दा सिर धड़ तो जुदा कर दिता, उन्होंने मार दिता उत्थे ही। दूजा पठान जिहड़ा भज्जिया उन्होंने गुरु के सिंघां ने पकड़ लिया, उन्होंने बाहर खत्म कर दिता गया। हुण सतगुरां दे बहुत बड़ा जख्म हो गया, जहर लगी सी उस खंजर नूं ते उस जख्म नूं संगत जी टांके लगाए गए, मलम पट्टी आदि की गई। गुरु साहब 3-4 दिन उस अवस्था दे विच रहे, बिल्कुल नहीं उठे। हर कोई आके सतगुरां दे दर्शन करदा, हाल चाल पुछदा ते बहुत उस समय कहंदे भी जिहड़ियां रौनकां सन हजूर साहब की उस धरती ते रौनकां सन गुरु साहब जी दे नाल, उत्थे हुण कुछ समय बैराग भी होया। संगत जी खुशियां भी ने, गमियां भी ने, दुख भी है, सुख भी। हुण 4 दिन गुरु साहब उस जख्म करके उठे ने, पै रहे ने सिख संगतां के दर्शन करदियां बैराग दे विच ते सारे ये कह रहे सन गुरु साहब तंदुरुस्त हो जान, ठीक हो जान, फिर उस तरह अबचल नगर नादेड़ की धरती ते रौनकां बन जान।
पर सतगुरु पातशाह महाराज जी नूं उस जख्म दे विचों अपने सचखंड जाण दा सदा मिलदा पिया सी। एक दिन सतगुरां ने पहला बंदा सिंह बहादुर नूं तोरिया, फिर बेनती कीती कि कहंदे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरगद्दी बख्शणी है, सतगुरां दा प्रकाश करो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया गया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने अपने कर कमलों के नाल गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी बख्शी, जिहड़ा दिहाड़ा आपां पिछे मना के हटे आ। ते संगत जी फिर अज वाले दिन कह लो सतगुरु जी इस लासानी संसार नूं हमेशा दे लई त्यागते हुए अज वाले दिन ज्योति जोत समाए सन। सतगुरां दा ज्योति जोत पुरब संगतां अज मना रही ने। संगत जी गुरु साहब कईयां ने उन्हां दे परथाए लिखिया भी घोड़े ते सवार होके सीधा सचखंड वल चले। लिखण वाला लिखिया विबाण ते सवार होके गए, पर सतगुरां दा जिहड़ा शरीर है वो नहीं मिलिया। ज्योति जोत रली संपूरन थिया राम, सूरज किरण मिली जल का, जल हुआ राम। जल विच जल, ज्योति विच जोत रल गई। गुरु ग्रंथ साहिब विच अपनी जोत विद्यमान करके, शरीर पंथ विच विद्यमान करके सतगुरां ने इस पावन पवित्र शरीर नूं त्याग करके सिख संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया, शब्द गुरु दे लड़ लाया। ते ये शब्द गुरु सानू हमेशा से देंदे रहणगे। ते सिख संगतां गुरु साहिब दी उन्हां लासानी कुर्बानियां नूं हमेशा याद करदी रहणगियां, सेधा करदियां रहणगियां। आउण वाले दिनां विच दसंबर दे महीने, पोह दे महीने तो सतगुरां दे परिवार दे आनंदपुर साहिब तो लैके सरसा नदी के परिवार दे विछोड़े, चमकौर की गढ़ी दे विच वड्डे साहिबजादियां दी शहादत, सरहंद की धरती ते छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर की शहादत, और मरजीवड़े सिंघां की शहादत। ये दिन संगत जी आने वाले जिन्होंने हर एक साल असीं बड़े प्यार और श्रद्धा भावना नाल याद करते हैं। गुरु साहिब दी लासानी कुर्बानियां नूं याद करते हैं। पर कुर्बानियां नूं याद करन दा तां ही लाभ है जेकर असीं गुरु ते गुरु दी कुर्बानी नाल जुड़िए, सेध लै करके अपना जीवन बदलीए। इन्हां नूं मनाउण दा तां ही लाभ है, तां ही फायदा है। संगत जी जरूर इन्हां ते अमल भी करिए, असर भी करिए, और पवित्र पावन दिहाड़े तां ही मनाउण दा फायदा जेकर गुरु दी बाणी नाल साडा बहुत ज़्यादा प्यार बने। सो अज गुरु साहिब का ज्योति जोत पुरब है, और जो आप पहला आरंभ दे विच सलोक सरवण कीते सन बाबा फरीद जी दे, सलोक नंबर 19 तो लैके सलोक नंबर 25 तक, आओ हुण इन्हां दे अखरी अर्थ दी विचार संगतां नाल साझी करिए। बाबा फरीद जी इन्हां सलोकां राहीं जो उपदेश दे रहे ने, आओ अर्थ भाव समझण दा यतन करिए। फरीदा जंगल जंगल क्या भवै, वण कंडा मूड़ी। कहते रब की प्राप्ति वास्ते बाबा फरीद जी कहते हर कोई जंगल जंगल भाउंदा फिरदा है। वण दे कंडे मोड़दा, भाव पैरां ते कंडे वजदे ने, ते रब की प्राप्ति वास्ते यतन हो रहे हैं। कहते रब नूं प्राप्त करने वास्ते तेन जंगल जंगल ढूंढण की लोड़ नहीं। वसी रब ही हाली है, जंगल क्या ढूंढे, जंगलों में उन्होंने लभण की लोड़ नहीं तेनों। वो परमात्मा कित्थे वसदा है, वो परमात्मा हिरदे घर विच वसदा है, उन्होंने अंदरों लभ लो। थिर कर वैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवार। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढोला सो भरम भुलाही। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। गुरु की कृपा ने जिन्होंने अंदरों रब नूं प्राप्त कर लिया, वो अंदर भी सुहेला, वो बाहर भी सुहेला। उन्होंने जंगलों में ढूंढण की लोड़ नहीं पैनी, उन्होंने पहाड़ां गुफावां दे विच लभण की लोड़ नहीं पैनी। वो किते भी जाके लभदा नहीं,
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵੇ ਹੋਮ। ਜੰਗੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਖ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੁਹਾ ਥਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਸਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਲੋਟਾ ਵੀ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀ। ਕਵੀ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧੁਕ ਧੁਕ ਉੱਠਣ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਧੁਕ ਧੁਕ ਉੱਠਣ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ